بہت سے لوگوں میں سے کسی ایک کو چن لینا اور کہنا کہ تو میرا بیٹا ہے. اسے لے پالک بیٹا بھی بولتے. میرے عزیزو، خدا یاد رکھیے، خدا واحد جو ہے، رب کائنات جو ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے. نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، مگر خدا باپ پیار سے یسوع مسیح کو بیٹا کہتا ہے. یسوع مسیح کہلایا ہوا بیٹا ہے. جس طرح میں اپنے باپ یعنی یعقوب کا بیٹا ہوں، اس طرح سے یسوع مسیح خدا کا بیٹا نہیں ہے، بلکہ یسوع مسیح چنا ہوا بیٹا ہے، برگزیدہ بیٹا ہے، کہلایا ہوا بیٹا ہے، ٹھہرایا ہوا بیٹا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے. کیا آواز آئی؟ یہ میرا برگزیدہ بیٹا ہے. اس کا مطلب ہے کہ اور بھی بہت سے بیٹے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اور بھی بہت سے ہیں جن میں سے یسوع مسیح کو لیا گیا اور کہا گیا کہ تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، تو میرا برگزیدہ بیٹا ہے. اور پھر رومیو پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت جلدی سے پڑھ دیجیے گا. رومیو کے نام پولس رسول کا خط پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت. لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، بلکہ تیسری آیت سے پڑھیے ذرا. اپنے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تم داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ جسم کے اعتبار سے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا. کیا لکھا ہے؟ جسم کے اعتبار سے وہ داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، مگر پاکیزگی کے روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. خدا کا بیٹا ٹھہرا. فرشتہ کیا کہتا ہے؟ وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. یہاں پہ لکھا ہے وہ قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا. میرا بیٹا تیموتھیوس ہے. وہ میرا کہلایا ہوا بیٹا نہیں ہے، ٹھہرایا ہوا بیٹا نہیں ہے، بلکہ وہ میرا حقیقی بیٹا ہے. مگر میں ابھی جماعت میں سے کسی کو کہتا ہوں کہ بیٹا آرام سے بیٹھ جاؤ، بیٹا ادھر آؤ، تو وہ کیا ہے؟ کہلایا ہوا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے. میرے عزیزو، سب سے پہلے نمبر پر ہمیں یہ جاننا ہے کہ یسوع مسیح کون ہے. یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، اور پھر یہ جاننا ہے کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیسے ہے. یہ بھی جاننا بے حد ضروری ہے. خدا کا بندہ پطرس رسول دوسرا پطرس پہلا باب کی 17ویں آیت میں کہتا ہے، اس نے یعنی یسوع مسیح نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، یہ میرا پیارا بیٹا ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح پیدا ہو چکا تھا. فرشتہ نے بھی کہہ دیا تھا وہ مولود مقدس خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. مگر جب یسوع مسیح 30 برس کے ہوتے ہیں، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا، پھر یہ پیشن گوئی یسوع مسیح کی زندگی میں پوری ہوتی ہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی سنو. اور خدا کا بندہ پطرس رسول بھی تصدیق کرتا ہے اور کہتا ہے اس نے خدا باپ سے اس وقت عزت اور جلال پایا جب اس افضل جلال میں سے یہ آواز آئی کہ یہ میرا بیٹا ہے. اور میرے عزیزو، یسوع مسیح دوران منادی اپنے شاگردوں سے سوال کرتے ہیں کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ سب شاگرد خاموش تھے، مگر پطرس رسول جو ہے عمر میں بھی سب سے بڑا تھا، عمر سیدھا تھا، اور ہمیشہ وہ پہل کرتا تھا بول چال میں بھی. وہ کہتا ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ تو ایلیا نبی ہے، بعض کہتے ہیں کہ تو نبیوں میں سے ہے، بعض کہتے ہیں تو یوحنا بپتسمہ دینے والا ہے. مگر یسوع مسیح ان سے سوال کرتے ہیں کہ تم مجھے کیا کہتے ہیں؟ لوگوں کو چھوڑو، وہ جو بھی
शागिर्द हो, तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम मुझे क्या कहते हो? तो कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती के लिए 6 बाब उसकी 16 आयत जब हम पढ़े तो लिखा है, पतरस ने कहा, तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। तू जिंदा खुदा का बेटा क्या है? मसीह है। यहाँ पे 2 बातें हैं। पहली बात, तू जिंदा खुदा का बेटा, और फिर दूसरी बात मसीह है। हमने जो मरकजी हवाला पढ़ा, यूहन्ना के इंजील 4 बाब की 10वीं आयत, सामरी औरत से बात हो रही है, तो वो यीशु मसीह से कहती है, जब यीशु मसीह से कहता है तू पानी पिला, तो तू उससे जानती और ये भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जिंदगी का पानी देता। और उसने उससे कहा है, खुदावंद तेरे पास पानी भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, फिर वो जिंदगी का पानी तेरे पास कहां से आया? और फिर आगे पढ़ते जाएं तो एक जगह पे वो कहती है, नो 19वीं आयत में औरत ने उससे कहा है, खुदावंद मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। क्या कहती है? पहले नंबर पर मुझे मालूम होता है कि तू नबी है। और फिर कहती है 25वीं आयत, जरा पढ़िएगा, पासा पढ़िएगा जरा 25वीं आयत। औरत ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो खरतस कहलाता है, क्रिस्तुस कहलाता है, आने वाला है। जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। मेरे अजीजों, कलाम मुकद्दस में पेशन गोइयों के जरिए से ये बताया गया था कि एक नबी बर्पा होगा, फिर यह बताया गया था कि मसीह आएगा। इसलिए सामरी औरत कहती है कि मैं जानती हूं कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है वो आने वाला है। वो क्या है? आने वाला है। क्योंकि खुदा ने अपने नबियों के जरिए से यीशु मसीह का यही तारफ करवाया था कि वो मसीह होगा। वो क्या होगा? मसीह होगा। मेरे अजीजों, मसीह जो है इसके लफ्ज़ी मायने है मसा किया होगा। क्या मायने है? मसा किया होगा। खुदा मसा करता है, कभी खुदा मसा नहीं होता। ये जानने की जरूरत है। और सामने औरत कहती है कि मैं जानती हूं मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है। और मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह ने उससे बातचीत की, सारी बातचीत की, तो फिर कहती है कि इकरार करती है, देखेंगे बस औरत अपना घड़ा छोड़कर शहर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक आदमी को देखो जिसने मेरे सब काम बता दिए। क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? क्या कहती है कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाती हूं। हालांकि यीशु मसीह ने उसके सारे काम उसको बता दिए थे, तो उसको पता भी चल गया था कि यीशु मसीह ने तो मेरी जिंदगी की जो भेद की बातें हैं, पोशीदा बातें हैं, वो मुझ पर जाहिर करती हैं। फिर भी वो क्या कहती है? क्या मुमकिन है कि मसीह यही है? उसने नहीं कहा कि खुदा दिलों को जानता है, ये खुदा है जिसने मुझसे सारी बातें मेरी जिंदगी की बता दी है, बल्कि क्या कहा कि आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाती हूं। किससे मिलाती हूं? एक आदमी से। और क्या मुमकिन है कि यही मसीह हो? और मेरे अजीजों, फिर आगे जब हम पढ़ते हैं
39 में तो लिखा उस शहर के बहुत से सामरी उस औरत के कहने से जिसने गवाही दी थी कि उसने मेरे सब काम मुझे बता दिए, उस पर ईमान लाए। और जब वो सामरी उसके पास आए तो उससे दरखास्त करने लगे कि हमारे पास रह। चनाचे वो 2 रोज वहां रहा और उसके कलाम के सवाब से और भी तेरे ईमान लाए। और उस औरत से कहा, अब हम तेरे कहने ही से ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने खुद सुन लिया और जानते हैं कि ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है। क्या है ये फिल हकीकत दुनिया का मुनज्जी है, निजात देने वाला है। मेरे अजीजों, वो लोग जिन्होंने रूबरू आमने सामने यीशु मसीह के साथ बातचीत की है, यीशु मसीह से उसकी जुबाने मुबारक से सुना है, गौर करें कि वो क्या तारीफ करवाते हैं और हम लोगों को क्या बताते हैं। हमारा ईमान भी वही होना चाहिए जो कलामे मुकद्दस में मरकूम है। जब पतरस ने कहा तू जिंदा खुदा का बेटा मसीह है, तो यीशु मसीह कहते हैं कि तू मुबारक है। क्या है तू? मुबारक है तू शमौन बार-योना, क्योंकि ये बात खून गोशत और खून नहीं, बल्कि मेरे बाप ने जो कहां पर है, आसमान पर है, उसने तुझ पर ज़ाहिर की है। यीशु मसीह नहीं कहता कि मैं बाप हूं, बल्कि क्या कहता है कि मेरे बाप ने जो कहां पर है, आसमान पर है, उसने ये बात तुझ पर ज़ाहिर की है कि मैं कौन हूं। मेरे अजीजों, फिर जब हम देखते हैं यूहन्ना के इंजील 20वां बाब 30-31 ऐप पढ़ते हैं तो लिखा है यीशु ने बहुत से मौजज़े दिखाए जो इस किताब में लिखे नहीं गए, लेकिन ये इसलिए लिखे गए कि तुम ईमान लाओ कि यीशु खुदा का बेटा मसीह है। यीशु खुदा का बेटा क्या है? मसीह है। ये जानना है, इस ईमान का इजहार करना है कि यीशु मसीह जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। और पहला यूहन्ना 5वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि दुनिया का मगलूब करने वाला कौन है। खुदा का बंदा सवाल करता है कि दुनिया को मगलूब यानी दुनिया पर घुमाने पाने वाला कौन है। फिर आगे उसका जवाब देता है, सिवा उस शख्स के जिसका ये ईमान है कि यीशु खुदा का बेटा है। यीशु खुदा का बेटा है। ये नहीं कि जिसका ये ईमान है यीशु खुदा है, बल्कि यीशु खुदा का बेटा है। ये ईमान होना बेहद जरूरी है। और हमने देखा कि खुदा कहता है कि ये मेरा बरगज़ीदा बेटा है, ये मेरा प्यारा बेटा है। फरिश्ता कहता है कि वो जिंदा खुदा का बेटा कहलाएगा। और फिर हमने देखा है कि रसूल शागिर्द जो हैं वो भी यही कहते हैं कि जिंदा खुदा का बेटा मसीह है। मगर मैं आज यहाँ पे एक और बात करने वाला हूं कि शैतान और बदरूहें भी जानती हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। शैतान और उसकी फौजें यानी बदरूहें भी जानती हैं कि यीशु खुदा का बेटा है। मगर अफसोस के साथ ये कहूंगा कि हम मसीही जो उसके पैरोकार हैं, उसको मानने वाले हैं, हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। मत्ती के इंजील 4 बाब की 32वीं आयत में लिखा है, शैतान ने कहा अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने तय नीचे गिरा। शैतान क्या कहता है? अगर तू खुदा का बेटा है। मेरे दिलों, शैतान की ये जुर्रत नहीं थी यीशु मसीह के सामने गलत बयानी करे, हालांकि उसका ये काम है लोगों को गुमराह करना, लोगों को गलत तालीम के पास लेकर जाना, असल ईमान से हटा देना। मगर यीशु मसीह के सामने उसकी कोई ऐसी मुकारी नहीं चली। उसको इकरार करना पड़ा कि तू खुदा का बेटा है। क्या कहता है? तू खुदा का बेटा है। मत्ती के इंजील 8वां बाब 29वें आयत जब पढ़ते हैं तो लिखा है, लश्कर ने चलाकर कहा, ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहां आया है कि हमें वक्त से पहले अजाब में डाले?
यहां पर लश्कर, बदरूहों का ग्रोह, वो कहता है खुदा के बेटे। क्या कहता है? खुदा के बेटे। और फिर सवाल करते हैं, क्योंकि बदरूहें जानती हैं कि अभी वक्त नहीं आया कि तू हमें अजाब में डाले, इसलिए कहते हैं ऐ खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहां आया है कि हमें वक्त से पहले अजाब में डाले? इसीलिए फिर यीशु से कहते हैं कि दूर हो, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि उन्होंने मुझसे क्या सवाल किया है। यीशु मसीह जानते थे कि मैं इनको अजाब में डालने नहीं आया। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि इब्ने आदम दुनिया में क्यों आया? ताकि निजात दे, ताकि उसके वसीला से निजात का काम पूरा हो। इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है, वो अजाब में डालने नहीं आया था। इसलिए लश्कर जो है वो कहता है खुदा के बेटे, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए यहाँ आया है कि हमें वक्त से पहले अजाब में डाले? और फिर मरकस की अंजील 3 बाब की 11वीं आयत का जब हम मुताला करते हैं तो लिखा है, नापाक रूहें जब उसे देखती थी उसके आगे गिर पड़ती और पुकार कर कहती थी कि तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का बेटा है। मेरे अजीजों, हम इसका मतलब है कि इन बदरूहों और शैतान से भी गए गुजरे हैं। वो जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। अगर हम इस ईमान से बढ़ जाते हैं, इस ईमान पर कायम नहीं रहते, तो इसका मतलब है कि हम नहीं जानते कि यीशु मसीह कौन है। और फिर यीशु मसीह खुद इकरार करता है। जब हम मत्ती रसूल का इंजीली बयान 26वां बाब और उसकी 63-64 आयत पढ़ते हैं तो वहां पे सरदार कहन जो है वो यीशु मसीह को कसम देता है। सरदार कहन यीशु मसीह को क्या देता है? कसम देता है। लिखा है, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू खुदा का बेटा है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। यीशु ने क्या कहा? तूने खुद कह दिया। सरदार कहन ने जिंदा खुदा की कसम दी थी कि तू हमें बता तू कौन है, क्या तू जिंदा है, क्या तू खुदा का बेटा है? अगर यीशु मसीह का तारफ और होता, अगर यीशु मसीह खुद खुदा होता तो वो कहता कि नहीं, क्योंकि उसको कसम दी गई थी। वो कहता कि मैं खुदा हूं, मगर ऐसा नहीं कहा, बल्कि यीशु मसीह ने कहा कि तूने खुद कह दिया है कि मैं खुदा का बेटा हूं। मेरे अजीजों, हमारा ये ईमान होना चाहिए। पहले नंबर पर हमने तारफ में देखा है कि यीशु मसीह नबी है। दूसरे नंबर पर यीशु मसीह खुदा का बेटा, और फिर तीसरे नंबर पर मसीह है। ये भी जरूरी है, क्योंकि रसूलों का ईमान का जब हम मुताला करते हैं तो पतरस रसूल मुनादी करता है, बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने इसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और फिर क्या किया? मसीह भी किया। खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। ईमान 5वां बाब और उसकी 42वीं आयत पढ़े तो वहां पे लिखा है, हैकल में और घरों में हर रोज तालीम देने और इस बात की खुशखबरी सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, बाज ना आए। रसूल हैकल में भी, घरों में भी, लोगों में क्या तालीम देते थे कि यीशु क्या है? मसीह है। यीशु क्या है? यीशु ही मसीह है। यीशु ही मसीह है, क्योंकि दुनिया जो है मसीह के इंतजार में थी। खुदा ने बताया था कि एक मसीह दुनिया में आएगा, इसलिए रसूल जो हैं वो साबित करते हैं कि यीशु ही मसीह है। ईमान 18वां बाब 28वें आयत में लिखा है, क्योंकि वो किताबे मुकद्दस से यीशु मसीह का साबित हो, यीशु का मसीह होना साबित करके बड़े जोर शोर से यहूदियों को एलानिया कायल करते थे। कोई राज की बात नहीं है जिस तरह से आज कहा जाता है, ये बहुत गहरी बात है, राज की बात है, आप नहीं समझ सकते, ये एक समंदर है। मेरे अजीजों, अब कोई राज नहीं है, अब कोई समंदर नहीं है। जो मुकाशफा था, जो यीशु मसीह को खुदा की तरफ से मिला था,
यीशु मसीह ने तो वो भी अपने फरिश्ता को भेजकर यूहन्ना आरब के जरिए से कलम बंद करवा दिया है और हम तक पहुंचा दिया है। वो मुकाशफा भी अब खुल चुका है। कौन सा भी मुकाशफा बाकी रह गया है? रसूल अलानिया कायल करते थे, अलानिया बताते थे कि यीशु ही मसीह है, यीशु ही मसीह है। और मेरे अजीजों, फिर हमने देखा यीशु मसीह खुदावंद है। यीशु मसीह, किताब मुकद्दस हमें बताती है कि यीशु मसीह खुदावंद है। पतरस रसूल कहता है कि उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, उसने उसे क्या किया? खुदावंद भी किया और मसीह भी किया। ये जानना जरूरी है। खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है दुनिया में बतेरे खुदा और बतेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक एक ही खुदावंद है, यानी यीशु मसीह। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तू अगर अपनी जुबान से इकरार करे, यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे तो निजात पाएगा। मेरे अजीजों, आज हमने यीशु मसीह को जाना है किताब मुकद्दस के मुताबिक कि यीशु मसीह कौन है। सबसे पहले नंबर पर यीशु मसीह एक नबी है, और नबी भी किसकी मानद है? मुकद्दस मूसा की मानद है। दूसरे नंबर पर हमने आज सीखा है यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और कैसे बेटा है? कहलाया हुआ बेटा है, ठहराया हुआ बेटा है, चुना हुआ बेटा है। और फिर कि वो मसीह है। क्या है? मसीह है। खुदा बाप ने उसे सबसे ज्यादा मसा किया, और इसका सबूत ये है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह के पास खुदा की 7 रूहें थी, यानी 7 तरह का मसा था। जैसे वो जान जाता था, जैसे उसने सामरी औरत के भी सारे काम उसको बता दिए थे, ये उस मसा के बदौलत था। और फिर यीशु मसीह खुदावंद है। कहीं भी नहीं लिखा कि ये इकरार करो यीशु मसीह खुदा है। आज चर्चेस में यही गीत गाया जा रहा है, खुद खालिक बन इंसान आ गया चरनी लाल है तेरे। मेरे अजीजों, खालिक रबे कायनात कभी नहीं बदलता। वो कहता है कि मैं ला तब्दील खुदा हूं। मैं क्या हूं? ला तब्दील खुदा हूं। वो कभी नहीं बदलता। वो बरूपिया नहीं है, वो धोखेबाज नहीं है। आज किसी इंसान की 2 बातें हो तो हम उसे कहते हैं कि ये धोखेबाज है। इसका कोई एक रूप ही नहीं है, इसका कोई एक चेहरा ही नहीं है, दिखाता और है, सुनाता और है। मेरे अजीजों, हमारा खुदा जो है वो ला तब्दील खुदा है। वो भी कभी नहीं बदलता। वो बार बार कहता है कि मैं ला तब्दील हूं, और उसको कोई जरूरत नहीं है कि अपनी मखलूक में से पैदा हो। खुदा पैदा करता है, पैदा नहीं होता। खुदा मरता नहीं है। और मेरे अजीजों, इसलिए हमेशा इस ईमान पर कायम रहे। और खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है अपने आप को आजमाओ, अपने आप को आजमाओ, परखो, चेक करो, क्या तुम ईमान पर हो या नहीं हो। जब आप चेक करेंगे, परखेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो फिर कलाम मुकद्दस में साफ साफ बताती है कि यीशु मसीह कौन है। और हमने इसी ईमान पर कायम रहना है, तो फिर हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। खुदा आज इस कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बड़ी बरकत बख्शे।